بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ عامل ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا یا کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے جو پہلے تھے ان کی مثل قول کرتے تھے، ان کے دل مل گئے ہیں، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں بھیجی ہیں اس قوم کے لیے کہ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق سنانے والا بھیجا ہے، حق بنا کر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے متعلق۔ آپ سے ہرگز یہودی اور نہ ہی عیسائی راضی ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہ دین حق ہدایت ہے، اور اگر آپ ان کے نفسانی خواہشات کی اتباع کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس کوئی علم آ گیا تو آپ کے لیے کوئی بھی مددگار اور ولی وارث نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے وہی لوگ ہیں ایمان لانے والے، اور جو اس کا انکار کرے تو وہ خسارے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو میں نے جو تم پر انعام کی ہے، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین پر، اور تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، عوض قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ۔ اب یہ یہودیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا اہل عرب کے متعلق جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ، لیکن ہمارے ساتھ تو کیا کبھی بھی اللہ نے کلام نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی واضح اور روشن کوئی دلیل آئی ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے ساتھ واضح کلام کر لیا یا اللہ ہمارے پاس کیا ہے کوئی واضح نشانی لے کر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے کر آ جائیں گے آپ پر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ پر ان کے جو سوالات ہیں، ان سوالات کی وجہ سے آپ ناراض نہ ہو۔ انہوں نے ان سے پہلے بھی ایسے ہی سوالات یہودیوں نے حضرت موسیٰ پر ارشاد فرمائے تھے، کیے تھے۔ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ حتی نر اللہ جاہرتن، ہم اتنے تک لن نؤمن لک حتی نر اللہ جاہرتن، ہم جب تک کہ اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں ہم اتنے تک آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ایسی ارین اللہ جاہرتن، ہم جب تک تو ہمیں واضح طور پر اللہ نہ دکھا دے ہم اتنے تک ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول بیان کیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو یہ قرآن دیا ہے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو حضور علیہ السلام درختوں کو اشارہ کرتے تھے وہ درخت کے آپ کے پاس چلتے آتے، اور ایسے ہی جو ہے نا آپ کے ہاتھ کے اندر جو ہے نا کنکریاں کیا ہے کلمہ پڑھنے لگتی، آپ کے ہاتھ سے کیا ہے پانی کی جو ہے نا فوارے نکلنے لگ گئے۔ تو اب یہ ایسے معجزات ہیں کہ اگر جو صحیح عقل والا ہو، صحیح سالم عقل اور درست دل رکھنے والا ہو تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ اس کو تسلیم کر دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضور کو تسلی دی، فرمایا کہ آپ ان مشرکوں کے ان سوال سے کیا ہے ناراض نہ ہو، اور آپ کو کیا ہے مغموم اپنے آپ کو نہ کریں، کیونکہ ان کے سوالات کو کیا لایا نہیں، اس کی جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو یہ
जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इन सवालात का नहीं दिया। उसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुजूर को एक निशानी सिर्फ कुरान ही दी थी ना, अब वो एक मुकल्लफ के लिए जो अकल रखता हो, दिल सही सालिम रखता हो, तो उसके लिए काफी था कि वो उसको तस्लीम कर ले और उसके अंदर इनकार न करे। लेकिन कुरान को मानने के बावजूद, कुरान को देखने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, इसके अंदर कजबहसी की है, रुकावट डाली, इनकार किया। तो पता चला कि कुरान से बड़ी तो कोई निशानी नहीं है। जब कुरान को तस्लीम नहीं कर रहे तो और निशानियों को ये किस तरह मान सकते हैं। ऐसे ही दूसरा जवाब अल्लामा राजी ने यह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इल्म के मुताबिक देख लिया था, जान लिया था कि अगर बाकी निशानियां भी इनके ऊपर क्या की जाए, नाजिल की जाए, दिखाई जाए, तब भी ये क्या ईमान लेकर आने वाले नहीं। इसलिए फरमा वलौ अलिमल्लाहु फीहिम खैरन लअस्माअहुम वलौ अस्माअहुम लतवल्लव वहुम मुरिदून, फरमाया कि अगर अल्लाह उनके अंदर कोई बेहतरी जान लेता उनको जरूर भी जरूर सुना देता। ऐसे ही तीसरा जवाब अल्लामा राजी ने यह दिया कि वो जिस तरह के मौजूदात को कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी आंखों से क्या कर लें, देख लें, अब अगर इनके इन ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाता तो फिर ये मौजूदात का जो हकीकी मकसद था कि ईमान बिलगैब, तो यहां पर ईमान बिलगैब तो रहता नहीं, क्योंकि वो अपनी आंखों से इसका क्या कर लेते, मुशाहदा कर लेते। हालांकि ईमान बिलगैब का उनसे क्या किया गया था, तकाजा किया गया था। ऐसे ही चौथा जवाब अल्लामा राजी ने यह दिया कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत जारिया है कि जो कौम कोई दलील तलब करती है, अब वो दलील आ जाए तो अब दलील तलब करने के बाद, दलील लाने के बाद भी वो ईमान लेकर ना आए तो रब ताला ने क्या करना, उनके ऊपर अजाब नाजिल कर देना था, क्योंकि ये सुन्नत इलाहिया और सुन्नत जारिया है। लेकिन रब ताला ने ये वादा किया वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, हुजूर जब तक आप हैं हम उनके अजाब नहीं देंगे। तो इस वादे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सुन्नत को मुअख्खर करने के लिए भी क्या कोई दलील नाजिल नहीं की। पांचवी वजह यह भी बयान की गई कि जिस तरह के वो मौजज़ात तलब कर रहे थे तो फिर ये मौजा ना रहता, क्योंकि मौजा जो होता खारिक लिल आदत होता है और आदत के मुखालिफ होता है। तो अब वो इतने ज्यादा मौजज़ात तलब कर रहे थे तो फिर तो ये मौजा ही नहीं रहता, तो ये तो क्या आदत के मुताबिक बन जाता। इसलिए ये जवाब नहीं दिया गया। आगे फरमा इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको हक बनाकर भेजा है, खुशखबरी देकर बनाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला भेजा है और डर सुनाने वाला भेजा है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते थे कि मेरे ऊपर क्या लोग ईमान लेकर आ जाए, तो आपको क्या जो ईमान लाने वाले नहीं तो उनके बारे में क्या हुआ, हंज और अफसोस हुआ। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, तसल्ली देने के लिए रब ताला ने फरमाया कि आप मगमूम ना हो कि हमने तो आपको क्या हक देकर, हक बनाकर भेजा है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कौन ईमान लेकर आए, कौन नहीं लेकर आए, क्योंकि इन्नमा अलैकल बलाग, आपके ऊपर तो क्या सिर्फ तबलीग कर देना। दूसरा शान नुज़ूल ये भी यहाँ पर बयान किया गया है कि कुछ हजरत कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के मुताल्लिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि काश मुझे मालूम हो जाता कि मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ। तो अब वहां पर हुजूर को क्या है, ये नाराजगी लाहिक हुई और वहां पर हंज और अफसोस हुआ कि पता नहीं मेरे वालिदैन ईमान लाए या कि नहीं लाए। तो इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। ईमान अबवैन के मुतालिक, यानी कि वालिदैन मुस्तफा मोमिन थे या कि नहीं थे, उनकी निजात पाने के मुतालिक अहले सुन्नत वल जमात के 3 मसलक हैं। पहला मसलक ये है कि हुजूर के जो वालिदैन थे वो बेहसत से पहले ही फौत हो गए थे और हुजूर के मबूस होने से पहले जो बंदा फौत हो जाए उनसे कोई बाज गश्त नहीं होती, उनको कोई अजाब नहीं दिया जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम उतने तक किसी को अजाब नहीं देते जब तक कि उनके अंदर कोई अपना रसूल ना भेज दें। और हुजूर की बैसत से पहले ये जमाना है फतरत है, हजरत ईसा और हुजूर के दरमियान कम अज कम 600 साल का क्या अरसा, और हुजूर की बैसत से पहले हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना जो हुजूर के वालिदैन थे वो क्या हो गए थे, फौत हो गए थे, इसलिए क्या उनसे बात गश्त नहीं होगी। दूसरा मसलक यहाँ पर यह बयान किया गया कि हुजूर के जो वालिदैन मुस्तफा वालिदैन हैं उनसे कभी भी शिरक सादिर नहीं हुआ था, और क्योंकि हुजूर के बारे में रब ताला ने फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तकुम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, हम आपको क्या देख रहे हैं, आप किस तरह क्या तब्दील हो रहे हैं और आपका जो नूर है वो किस तरह क्या पलट रहा है पाक पुश्तों से पाक पुश्तों की तरफ और पाक रहमों से पाक रहमों की तरफ। तो जब हुजूर के जो है ना नूर की जो है ना इंतकाल हो रहा है तो हजरत आमना और हजरत अब्दुल्ला के पेट के दरमियान आया और पुश्त के अंदर आया, तो ये लाजिम है कि वो क्या होंगे, पाक होंगे और शिरक से क्या होंगे, पाक होंगे, वगरना ये ना फरमाया जाता
हिना व तक़ल्लुबका फी साजिदीन, आप क्या है साजिदों की क्या पुष्ट से क्या हो रहे हैं, पलट रहे हैं। ऐसे ही तीसरा जो मसला है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन की कब्र पर गए तो रब ताला ने आपकी जो है ना दुआ का सदका, आपकी बरकत के सदके आपके वालिदैन को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। अब वहां पर हुजूर ने उनको क्या किया, ईमान की दावत पेश की, ईमान की दौलत से क्या रब ताला ने उनको क्या कर दिया, नवाज दिया। और इसके अंदर क्या है, अलामा आलूसी अलामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर जिक्र किया कि इसके अंदर क्या है, कोई एतराज भी नहीं है, क्योंकि हजरत मूसा के पास ये कुव्वत ताकत है कि वो क्या कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये कुव्वत ताकत है कि वो क्या कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। तो हुजूर के पास तो उनसे भी ज्यादा बढ़कर ताकत है। और हुजूर की बरकत से क्या वालिदैन को अगर जिंदा कर दिया जाए तो अकल इस बात को क्या करती है, तस्लीम करती है, इसका इनकार नहीं करती। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए और हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि जिनके घर के अंदर ईमान आया, जिनके घर के अंदर इस्लाम आया, जिनके घर के अंदर कुरान आया, वो किस तरह कुरान से दूर रह सकते हैं, वो किस तरह ईमान से दूर रह सकते हैं। तो इसलिए अबवैन मुस्तफ़ा और वालिदैन मुस्तफ़ा का ईमान के बारे में कौल करना ये आसान है। हाँ, जो रावियों से जो ये रिवायात आई है कि हुजूर की क्या वालिदैन ईमान पर नहीं थे, उनको क्या हम ये कहेंगे कि ये ज़ईफ रावी हैं, या हम उनको कह देंगे कि ये सिका रावी नहीं, हम इनकी रिवायत को कबूल ही नहीं करते। आगे रब ताला फरमाया वलन तरदान का यहूद वलन नसारा, फरमाया कि हुजूर आपसे कभी भी यहूदी खुश नहीं होंगे, आप उनकी क्या इत्तिबा भी करने लग जाएं। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर खिताब तो हुजूर को किया गया, लेकिन मुराद इससे आपकी उम्मत मुस्तफ़ा को बयान किया जा रहा है कि तुम यहूदियों के तुम नीचे भी लग जाओ, तुम उनकी क्या इत्तिबा करो, तुम उनके पीछे हर काम के अंदर जी जी करते भी रहो, तो भी क्या वो तुम्हारी इत्तिबा हरगिज नहीं करेंगे, तुमसे वो राजी और खुश हरगिज नहीं होंगे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम के अंदर इरशाद फरमाया लाइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, वरना हुजूर अगर आप क्या करेंगे, शिरक करेंगे तो आपके अमाल क्या हो जाएंगे, जाया। वगरना ये हुजूर से तो क्या शिरक का सुदूर मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ये उम्मत को क्या किया जा रहा है, खिताब किया जा रहा है कि याद रखो तुमने क्या किया, शिरक किया, तुम्हारे अमाल क्या हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे और हफ्ते अमाल का क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। तो इसको तारीफ कहते हैं, यानी कि कलाम का रुख किसी और की तरफ किया जाए और मुराद कोई और लिया जाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, हमने जिनको क्या किताब यानी कि कुरान दिया तो वो उसकी तिलावत करते हैं, उसका हक अदा कर देते हैं। अब कुरान की तिलावत का हक क्या है, उलमा ने ये इरशाद फरमाया कि वो क्या वुजू करके क्या उसकी तिलावत करे, वो खुशबू लगा कर बैठ कर क्या करे, तिलावत करे, और तजवीद के साथ क्या यानी कि हर हर्फ को क्या अपने अपने मखरज से अदा करके उसको क्या करे, तिलावत करे। बाकी भी क्या है, तिलावत के जो है ना हुकूक वहां पर जिक्र किए गए। आगे या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती, इसकी भी तफसीर हमने जिक्र कर दी थी। वत्तकू यौमन ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा, इसकी भी तफसीर हमने पीछा साबका जो है ना उस कलाम के अंदर जिक्र कर दी थी। हक ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।